अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 4 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स मस्जिद में सफ़ की बाएं जानिब इसलिए खड़ा होता है कि वहाँ लोग कम खड़े हैं तो उसे 2 अजर मिलते हैं। और अब सुर्खियां। आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद को 25 लाख तक बढ़ा दिया गया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से जगन ने नए कार्ड्स की इजराई का किया इफ्तिताह। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर। गांधी भवन में पीएसी इजलास का इनेकाद। कांग्रेस की जानिब से डोनेट फॉर देश मुहिम का आगाज। खरगे ने जारी किया ऐप। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची अस्पताल में जेर इलाज, जहर दिए जाने की खबर। और अब तफसील। गांधी भवन में मुनक़िदा पीएसी इजलास में चंद कलीदी उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। इससे पहले इजलास में कांग्रेस को रियासत में इख्तिदार सौंपने पर तेलंगाना अवाम का शुक्रिया अदा किया गया। इंतखाबी मुहिम में दीगर रियासतों से आकर हिस्सा लेने वाले कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया गया। साथ में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की अपनाई जाने वाली हिकमत अमली और दीगर सियासी उमूर पर गौर खौज किया गया। साथ में 6 गारंटियों पर अमल आवरी से मुतालिक भी तबादिले ख्याल किया गया। डिस्कशन జరిగింది ఒక కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది ఇకపోతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా బట్టి విక్రమార్ గారు ఫైనాన్స్ ఎంత బ్యాడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నది ఆ విషయంలో కూడా పిఎస్సి మెంబర్లకు వివరించినారు అది దాని ప్రిపరేషన్ అవుతున్నారు రేపు ఎల్లుండి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు మన ఫైనాన్స్ పొజిషన్ మనది ఎంత భయంకరమైన డెట్ ఫైనాన్స్ ఉంది మరి ఈ విషయం కూడా పిఎస్సి మెంబర్లకు తెలపడం జరిగింది దాంతో సహా మరి ఈ ఇరిగేషన్లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇరిగేషన్లో జరిగిన అవకతవకలు కానీ మన కేవలం ఒక కాళేశ్వరం మీద 85 నుంచి 90,000 crores ఖర్చు పెట్టి కనీసం 90,000 ఎకరాలు కూడా మనం సాగునీరు ఇవ్వలేకపోయినారు. దాంతో సహా ఇతర మహబూబ్ నగర్ అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్లో కలిపితే 1,30,00,000 రూపాయల వరకు వాళ్ళ కోట్లు ఇలా అయింది. అది ఆ విషయంలో కూడా వాళ్ళు వైట్ పేపర్గా మా పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఈ ఈ చర్చ కూడా జరగబోతుంది. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తే ఆ పార్టీలో మొత్తం రాష్ట్రంలో మేము 6 డిక్లరేషన్ ఎట్లా తీసుకుపోయినామో గ్యారంటీ స్కీమ్స్ అలాంటిది ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రజల్లో తీసుకుపోతున్నాం. ఫైనాన్స్, ఇరిగేషన్, దాంతో సహా ఎనర్జీ విషయంలో కూడా మన 10 సంవత్సరాల్లో ఒక భద్రాద్రి ప్రాజెక్ట్ తప్ప యాదాద్రి కానీ ఏ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కానియకుండా దాదాపు అది కూడా 80,000 crores వరకు అప్పులు చేసి పెట్టినారు. ఈ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. आरोग्यश्री के इलाज की हद को एपी में वजीर आला जगन ने 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। इस जिम्मन में नए कार्ड्स की इजराई का वजीर आला जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टरों और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और उन्हें आरोग्यश्री से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार करने और हर मुस्तहिक तक स्कीम को पहुंचाने के लिए दरकार इक़दाम करने पर जोर दिया। आरोग्यश्री పేదవాడికి మరింత చేరువ చేస్తూ వైద్యం కోసం ఏ పేదవాడు కూడా అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి ఏ పేదవాడికి ఉండకూడదు అన్న తలంపు తాపత్రయంతో ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీని ఎప్పుడూ కూడా ఎవరూ కూడా చూడనంతగా మార్పులు తీసుకొస్తూ మరో ముందడుగు వేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఆ దిశగా. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఉచిత వైద్యం పరిమితిని
25 లక్షలకు పెంచుతూ ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడము, దాని మీద పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రతి ఇంట్లోనూ కూడా అసలు ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు ఎలా పొందాలి, ఉచితంగా వైద్యం ఎలా చేయించుకోవాలి, ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి పోవాలి, ఎవరిని అడగాలి, ఇలాంటి ప్రతి డౌటును కూడా ఎవరి మనసులో కూడా ఇటువంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా లేకుండా క్లియర్ చేస్తూ వారి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఈ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తూ, మరోవైపున ఏ రకంగా ఆరోగ్యశ్రీని అవైల్ చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా ఆరోగ్యశ్రీని మనం పొందవచ్చు, ఉచితంగా రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా మనం వైద్యం ఎలా పొందవచ్చు అనే దాని మీద పూర్తి అవగాహన కల్పించే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈరోజు మనం శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. करनूल में वायएसआर कांग्रेस पार्टी की बस यात्रा के सिलसिले में जलसे-आम का इनेकाद हुआ। इस जलसे से वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए, साबिक वुज़रा और साबिक एमपी और मेयर ने खिताब किया। हफीज खान और अहमद अली खान और दूसरे कायदीन ने खिताब करते हुए जगन हुकूमत को मुल्क की मिसाली हुकूमत करार दिया। अक़लियतों की तरक्की के लिए जगन ने जो इक़दाम किए उसकी सिताइश की गई। मेरी भी 10 साल सियासती जिंदगी गुजर चुकी है। मैं आप लोगों को बिल्कुल छोटे अल्फाज में 1-2 बात बोलकर चले जाऊंगा। मैंने सारे हिंदुस्तान की सियासत देखी है, काफ़ी इलेक्शंस देखे हैं, उत्तर प्रदेश हो या गोवा हो, कर्नाटका हो, सब फिरा है। लेकिन आज अगर हिंदुस्तान की तारीख में अगर सबसे बेहतरीन हुकूमत अगर कोई है तो सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो अपने बात पे ठहरी होती है। जिस तरह उनके वालिद ने राजशेखर रेड्डी साहब ने हम माइनॉरिटीज को 4% रिजर्वेशन दिया था, हमारा हाथ थाम कर गरीबी के ऊपर लाया था, उसी तरह उन्हीं के फर्जंद जगनमोहन रेड्डी साहब अपना पूरा वादा पूरा कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, बीसी हो या माइनॉरिटी हो, जिनके बच्चे आज स्कूल नहीं जा सकते थे, आज अम्मावड़ी के जरिए उनको पैसा पहुंचाकर उनको स्कूल भेजकर उनको पढ़ाया जा रहा है। మన కర్నూలు నగరానికి దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతో సంక్షేమ పథకాలు అందించినాడని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. మన కర్నూలు నగరానికి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి 500 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినాడని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కోసం 150 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు కేటాయించడం జరిగింది. అలాగే క్రిటికల్ కేర్ ని కోసం 23 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చిన్న చిన్న పనుల కోసం, మరమ్మతుల కోసం దాదాపు 7 నుంచి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా గాని ఆయన ఇచ్చిన స్పెషల్ ఫండ్స్ తో గాని 125 కోట్లతో ఈ రోజు కర్నూలు నగరానికి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. అలాగే అక్కడికి ఆగలేదు, క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ ద్వారా 88 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. రాయలసీమ యూనివర్సిటీలో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కోసం 10 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. నాడు నేడు స్కూల్స్ లో 27 కోట్ల రూపాయలతో ఈ రోజు మన స్కూల్స్ కి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. राचाकुंडा पुलिस ने मुंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 3.5 किलो अफीम को जब्त किया है। मलकाजगिरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3.5 किलो अफीम और दूसरी मुंशियात को जब्त किया। इसके अलावा नकदी को भी जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा सुधीर बाबू ने तफसीलात बताई। सुधीर बाबू ने बताया कि मुंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक राजस्थान से है। रायतु बंधु स्कीम के दायरे को महदूद करने की हुकूमत मंसूबाबंदी कर रही है। रवा महीने की 21 तारीख तक कलेक्टरों के साथ इजलास के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत फैसला कर सकती है। कहा जा रहा है कि 10 एकड़ अराजी तक रायतु बंधु की स्कीम को महदूद किया जा सकता है। तमिलनाडु में बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। बारिश की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनों की आमदोरफ्त को मुलतवी करना पड़ा। स्कूल्स को छुट्टियां दे दी गई हैं। जनूबी तमिलनाडु के थेरुचेंद्रु पल्लियाम कोटा में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने ओहदेदारों को राहत और बचाव के काम अंजाम देने की हिदायत दी है।
कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अतिया मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश के नाम से ऐप जारी किया है। इस ऐप के जरिए कांग्रेस पार्टी अवाम से अतियात वसूल करेगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सरमायादारों के बजाय मुतवस्सित तबके से अतियात वसूल कर रही है। कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें तो देनी देश के लिए डोनेशन, ये सब देश के बनाने में हमको मदद होता है और छोटे छोटे डोनर्स के पास हम अपना डोनेशन लेके देश को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमीरों के ऊपर ही अगर आप भरोसा करके काम करते जाएंगे तो ये कल के दिन उनके कार्यक्रम को और उनके पॉलिसीज को हमको मानना पड़ता है। कांग्रेस की डोनेट फॉर देश मुहिम को बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया है। इस ज़िमन में एक फिल्म की वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर किया जो वायरल हो गई। इनकलाब फिल्म से अमिताभ बच्चन के एक मंजर को इस क्लिप में दिखाया गया है, जिसमें काले धन को चंदों की शक्ल में दिखाकर उसे इंतखाबात में इस्तेमाल करने का मंसूबा दिखाया गया है और रिमार्क किया कि इस फिल्म के मंजर के मुताबिक कांग्रेस डोनेट फॉर देश मुहिम शुरू की है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी चूक मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन बहस कराने की मांग पर अटल है। अपोजिशन के अरकान दोनों ऐवानों में सिक्योरिटी चूक मामले पर बहस की मांग करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। ताहम स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा इसके लिए रजामंद नहीं है और दोनों ऐवान की कार्रवाई वक्फे से मुलतवी करते रहे हैं। इसी दौरान लोकसभा से अपोजिशन के मजीद 31 अरकान को मुअत्तल किया गया है। गौरव गोगोई और टीआर बालू समेत 31 मजीद अरकान को लोकसभा से मुअत्तल किया गया है। प्लेकार्ड अवाम में लाने और स्पीकर ने एतराज़ किया और ऐवान में एहतजाज करने पर कार्रवाई की है। लोकसभा में आज कुवैत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अस-सबा के इंतकाल पर गहरे रंज मलाल का इजहार करते हुए कुवैत के अवाम से इजहार ताज़ियत किया गया। लोकसभा के स्पीकर ने इजहार ताज़ियत पेश किया और लोकसभा में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। सभा को कुवैत अमीर के निधन की सूचना देना चाहता हूं। हम कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाब अल अहमद अल जफर अल सवा के दुखद निधन का संदेश प्राप्त हुआ है। शेख नवाब का कुवैत के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके निधन से कुवैत ने एक महान राजनेता को खो दिया है। शेख नवाब के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। इस कठिन समय में ये सभा कुवैत के शासक परिवार, नेताओं और कुवैत के नागरिकों के साथ एकजुटता के साथ संवेदना के साथ खड़ी है। अब सभा सीपीआई लीडर के नारायणन ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी नुक्स पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस वाक़े में मुस्लिम या कम्युनिस्ट मुलविस होते तो हुकूमत वावेला मचा देती। चूंकि बीजेपी एमपीज ने पास जारी किया था, इसीलिए ज्यादा हंगामा बर्पा नहीं किया गया। नारायण ने कहा कि अगर वजीर आजम और वजीर दाखिला पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ऐसी हुकूमत की मुल्क को जरूरत नहीं है। పార్లమెంట్లో పొగబాంబు ఘటన అది ప్రమాదం లేని పొగబాంబు నష్టమని చెప్పొచ్చును కానీ అసలు పార్లమెంట్లోకి ఎంట్రీ కావాలంటే 4 అంచెలు తనిఖీలు ఉంటాయి. ఎంపీ కూడా ఒక చోట ఉంటుంది, కానీ విజిటర్స్ ఎంపీ విజిటర్స్ని 3 నుంచి 4 చోట్ల దాకా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు పెడితే అంతా మనకేమి తెలిసిపోద్ది.
మరి అట్లాంటి బూట్లో వాళ్ళు పొగ బాంబు పెట్టుకొని పోయారంటే మరి స్కానింగ్లు ఎందుకు బయటపడలేదు నాకు అర్థం కాలేదు. 2, వాళ్ళకి ఇచ్చిన పాస్ ఎవరు ఇచ్చారు? బీజేపీ వాడు ఇచ్చాడు. పొరపాటున బీజేపీ కాకుండా ఏ ముస్లిం వాడు కమ్యూనిస్ట్ వాడిని పాస్ ఇచ్చి ఉంటే ఈ పార్టీకి ప్రపంచం మొత్తం గగ్గోలు వేసి ఉండేది, కొట్టబోయినారు అని. అందులో ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ కానీ పొరపాటు ఇచ్చి ఉంటే ఆ పాసులు ఇంక ఉండక్కల్లా. కాబట్టి బీజేపీ వాడు ఇచ్చాడు ఆ పాసు. అందుకే దొంగకు తేలుకుంటే ఉండిపోయారు, ఎవరు మాట్లాడటం. నా కోరిక ఏంటంటే వాడు ఎవరు పిల్లోళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో ఎమోషన్ వచ్చింది. खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा ने दिल्ली में वाक़े जंतर मंतर पर संसद घेराव प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस महिला मोर्चा के अलावा खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की सिमत बढ़ने वाली खवातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुल्क में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। कोरोना की नई किस्म JN1 केरला में तेजी से फैल रहा है। मुल्क भर में इतवार के एक ही दिन ही 335 नए मामले दर्ज किए गए और 5 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसमें से 4 अमवात केरला में ही दर्ज की गई। मरकजी महकमे सेहत ने बताया कि मुल्क भर में फिलहाल कोरोना के 1701 मामले मौजूद हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के अस्पताल में शरीक होने की खबर है। बताया जाता है कि शदीद सेहत खराब होने के सबब उन्हें कराची के एक अस्पताल में शरीक कराया गया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। भारी सिक्योरिटी में दाऊद इब्राहिम का इलाज किया जा रहा है। जिस फ्लोर पर उन्हें रखा गया है वहां डॉक्टरों और उनके रिश्तेदारों के अलावा किसी दूसरे को जाने की इजाजत नहीं है। मुंबई पुलिस दाऊद के बारे में मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। दाऊद इब्राहिम के अस्पताल में शरीक होने की खबरों के बाद पाकिस्तान में सनसनी फैल गई है। कई मकामात पर इंटरनेट खिदमत बंद करने की खबरें आ रही हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत कई अहम शहरों में इंस्टाग्राम, फेसबुक कारगर न रहने की पाक सोशल मीडिया यूजर्स शिकायत कर रहे हैं। वहीं दाऊद इब्राहिम की खबर को दुनिया में आम होने से रोकने के लिए इंटरनेट की रफ्तार को कम करने की शिकायतें भी वसूल हो रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद को 25 लाख तक बढ़ा दिया गया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से जगन ने नए कार्ड्स की इजराई का किया इफ्तिताह। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर। गांधी भवन में PAC इजलास का इनेकाद। कांग्रेस की जानिब से डोनेट फॉर देश मुहिम का आगाज। खरगे ने जारी किया ऐप। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची अस्पताल में जेरे इलाज जहर दिए जाने की खबर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।